Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter that name is Globe, Latitudes and Longitudes. A globe is a model which represents the earth. The earth is flattened at the poles. Its circumference is about 40,000 km and diameter is 12,756 km across the equator. Without certain aid or model, it is difficult to understand the size of the earth and to describe its several characteristics or located places on it. The earth is represented by the globe. दिस इज अ ग्लोब. ग्लोब क्या है? अ मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ को पढ़ना बहुत मुश्किल है अगर ग्लोब ना होता. ग्लोब जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की. जैसे कि अर्थ एक स्फेरिकल है, शेप में है, लेकिन पोल से थोड़ा सा फ्लैटेंड है. सेम लाइक दैट एक ग्लोब डेवलप किया गया है ताकि हम इजीली अर्थ की स्टडी कर सकें. नाउ टिल्टेड एक्सिस. सी, आपने ग्लोब देखा होगा. ग्लोब की जो पोजीशन है वो कैसे है, कैसे रेस्ट करता है? वो एक टिल्टेड पोजीशन है, एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर पोजीशन नहीं है. ग्लोब की जो पोजीशन है वो टिल्टेड है. ऐसे ही जो अर्थ भी है वो भी अपनी प्लेस पर थोड़ा सा टिल्टेड है at the angle of 23.5 degree with the perpendicular to the plane of the Earth's orbit. In other words, it makes an angle of 66.5 degree with the orbital plane. The globe is shown to rotate on a line passing through its center. This line is called its axis. Thus, a line around which a heavenly body seems rotating is called an axis. The globe also shows how this axis pass through the North Pole and the South Pole. अब एक लाइन जो है वो पोल्स को आपस में टच करती है, जिस पर हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ रोटेशन करती है उस टिल्ट पर. इस लाइन को क्या कहते हैं? एक्सिस. Now again watch the globe for what is drawn on it. It shows accurate size and shapes of continents, oceans, directions, distances and different other characteristics of the earth. For instance, you will also see the South America is smaller than Africa. The information that you obtain from the globe is found correct with respect to the real position seen on the earth. और ग्लोब पर हम क्या देख सकते हैं? जैसे कॉन्टिनेंट की एग्जैक्ट पोजीशन अर्थ पर क्या है, कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट छोटा है, ओशियंस की पोजीशन कहाँ है, ये हम एग्जैक्टली जो अर्थ पर जो प्रॉपर उनकी लोकेशन है वो ग्लोब से समझ सकते हैं. नाउ व्हाट आर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हमें बहुत सारी लाइनें जो हैं, एक नेटवर्क ऑफ लाइंस दिखाई देता है. उसको नेटवर्क ऑफ लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उनको कहते हैं ग्रिड. हॉरिजेंटल लाइन जो है दे आर कॉल्ड लैटिट्यूड एंड द वर्टिकल लाइंस आर नोन एज लॉन्गिट्यूड. ओके, अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में. While studying geometry, you might have learnt about a circle has a 360-degree circumference. The straight line passing through the center of the circle measures 0 degree across, and a degree is further subdivided into 60 minutes, written as a post office. A minute is further split into 60 seconds, written as double post. The same principle are applied to measure the lines of latitude and longitude on the globe. Now, what are latitudes? These lines are drawn horizontally. ये ऐसे horizontally draw होती हैं. ओके, तो these are the line of latitude, जिनको parallels of latitude भी बोलते हैं, क्योंकि all lines are parallel to each other. ये कहीं भी आपस में intersect नहीं करती है. And ये जो line है, where the axis passes through these points are known as North Pole and South Pole respectively. सबसे बड़ा जो लाइन ऑफ पैरेलल है वो कहाँ है? इक्वेटर पर. जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे लाइन ऑफ लैटिट्यूड जो है वो क्या होती जाती हैं? कम होती जाती हैं. और लास्ट में क्या है? ये जो पोल्स है दिस इज द टिप, नॉट अ कंप्लीट सर्कल. और जो इक्वेटर है ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ पोल की तरफ
southern hemisphere. The poles are just points and measures 90 degree north, North Pole, and 90 degree south, South Pole. Magnetic and geographical poles do not coincide. और इस तरीके से पैरेलल्स जो है जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं इनकी लेंथ क्या होती जाती है, डिक्रीज, और लास्ट में जाके क्या रह जाते हैं, ये पॉइंट्स रह जाते हैं. नाउ अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स. Important parallels on its axis in front of a lighted candle, you will observe that places near the equator always remain turned toward the sun. The candle, these places receive maximum sunshine. अगर हम एक ग्लोब को एक कैंडल के पास लेके जाएंगे तो हम देखेंगे जो इक्वेटर है यानी मिड लाइन जो है वहाँ सबसे ज़्यादा उसकी रोशनी पड़ेगी. इसी तरीके से जो सन है वो इक्वेटर पर ओवरहेड शाइन करता है और बाकी पोल्स की तरफ जैसे जैसे जाते हैं जो सनलाइट है वो कम होती जाती है. तो इनको अच्छे से पढ़ने के लिए हमने पैरेलल्स को, कुछ इम्पोर्टेंट पैरेलल को मार्क आउट किया है ताकि हम इजीली स्टडी कर सकें, जिनमें से फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ. ओके, तो ये आपका इक्वेटर है 23.5 डिग्री, ये आप नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है साउथ में, एंड हेयर द ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल एंड हेयर अंटार्कटिक सर्कल. तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल मार्क किए गए हैं. नेक्स्ट इज हीट जोन्स. Based on the angle of incidence of the sun or the angle at which the sun shines overhead, the parallels of latitudes are drawn. इस तरीके से अलग अलग हीट जोन बनाए गए हैं जहाँ पर सनलाइट, दिस इज द इक्वेटर, जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट आती है तो इसके आसपास का जो एरिया है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक. दिस रीजन इज कॉल्ड टॉरिड जोन. एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिडिटी होती है, सबसे गर्म टेम्परेचर रहता है. दिन के टाइम पर यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर आप देखोगे जो बहुत सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं और पेड़ इतने लंबे होते हैं यहाँ पर कनोपी बना लेते हैं जो सनलाइट भी अंदर एंटर नहीं कर पाती. सेकेंड टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल साउथ में. दिस इज द टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन मीन्स मॉडरेट जोन, ना ही ये ज़्यादा हॉट होते हैं ना ही ज़्यादा यहाँ पर कोल्ड सीजन होता है. ओके, नेक्स्ट इज दिस इज द फ्रिजिड जोन. जो पोलर रीजन है, जो पोल्स के पास का जो रीजन है आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक, दिस रीजन इज नोन एज फ्रीजिड जोन. यहाँ पर सन की जो लाइट है वो बहुत कम जाती है एंड the sun never rises above the horizon. The polar regions receive minimum solar energy. That's why they remain always frozen. हमेशा ये बर्फ से ढके रहते हैं पूरे सालों साल, इसीलिए इनको फ्रीजिड जोन भी कहते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. Meridians of longitude. The circle that runs through the north and south poles at right angle of the equator is known as meridians. Longitude is the angular measurement around the earth measured in degrees. All north-south lines are either meridians or lines of longitude. To locate these north-south lines, countries of the world by mutual consent choose a particular meridian as the circumference line. This meridian came to be called the prime meridian. जैसे आपने ऑरेंज देखा है, ऑरेंज की जो स्लाइस होती हैं वो अलग अलग होती हैं, इसी तरीके से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की जो लाइंस हैं जो इस तरीके से डिवाइड की होती हैं वर्टिकल में, उनको क्या कहते हैं, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या फिर लाइंस ऑफ मेरिडियन. और इनका अच्छे से इनको स्टडी करने के लिए हम 0 डिग्री पे हमने एक इम्पॉर्टेंट मेरिडियन मार्क की है जिसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, जो कहाँ से पास आउट करती है, ग्रीनविच लंदन. इसीलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन का नाम भी
दिया गया है। ओके, तो हमारे पास कितने मेरिडियंस हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास 360 मेरिडियन है। 180 डिग्री आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और 180 डिग्री हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। एंड द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज नोन एज लॉन्गिट्यूड। क्लियर नाउ? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से, प्राइम मेरिडियन से हम जैसे जैसे वेस्ट की तरफ जाएंगे 180 डिग्री तक हम काउंट करेंगे, और प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाएंगे 180 डिग्री काउंट करेंगे। तो टोटल कितने मेरिडियंस हैं हमारे पास? 360 मेरिडियंस। सी, दिस इज द ग्रीनविच लंदन, दिस इज द लाइन ऑफ प्राइम मेरिडियन। ओके, एंड 0 1 2 3 अप टू 180, 0 1 2 3 अप टू 180। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड होता है एक जाल। अ फ्रेमवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एट राइट एंगल्स इज नोन एज अ ग्रिड। अ ग्रिड इज एन important tool of survey for locating a place or pinpointing a dot on a graph. On the globe, parallels of latitude and meridian of longitude are used to make a grid. जैसे हम ग्लोब को अगर देखेंगे, ग्लोब क्या है? एक नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस हैं। तो किसी भी जगह को लोकेट करना इस ग्रिड की हेल्प से बहुत इजी हो जाता है। अगर हमें किसी भी जगह का लैटिट्यूड पता है और लॉन्गिट्यूड पता है तो हम इजीली उस प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। ओके, सी हियर इज द एग्जांपल। मुंबई, लैटिट्यूड 19 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 72 डिग्री 48 ईस्ट, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हम मुंबई को लोकेट कर सकते हैं। इसी तरह हमें जिस भी जगह का, जिस भी लोकेशन का लैटिट्यूड पता है, लॉन्गिट्यूड पता है, तो हम इजीली हम उस प्लेस को ग्रिड पर, नेटवर्क पर यानी ग्लोब पर लोकेट कर सकते हैं। नाउ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। The easiest means of representing distribution of time over the globe is grid. The sun rises and sets according to a fixed schedule. Earth apparently moves from east to west. The circumference of the globe is 360 degree. The sun covers these 360 longitude in 24 hours. जैसे अर्थ जो है अपना रोटेशन कितना करती है? 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। तो उसी तरीके से जो सनलाइट है वो पूरे 360 लॉन्गिट्यूड कवर करने में कितना टाइम लगाता है? 24 आवर्स। तो एक बार में एक जो फेस है वो अर्थ सन को फेस करती है। दिस मीन्स दैट the sun covers 15 degree of longitude in 1 hour and 1 degree of longitude every 4 minutes. 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड 1 घंटे में कवर करता है सन, और अगर हम बात करें मिनट्स की तो 4 मिनट में एक लॉन्गिट्यूड कवर होता है। इस तरीके से अगर 1 डिग्री हम मूव करेंगे तो कितना टाइम का इंटरवल आएगा? 4 मिनट्स का डिफरेंस आएगा। और अगर हम 10 डिग्री मूव करेंगे तो कितना? 40 मिनट्स का डिफ्रेंसिएशन आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर रांची 84 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर लोकेट है, वहाँ पर अगर 6 बजे हैं, तो अमृतसर में कितना टाइम होगा उस टाइम? 5:20। एंड क्वेता पाकिस्तान में कितना टाइम होगा? 4:48। ओके, तो क्यों है ये टाइम डिफरेंस? बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ डिफरेंट लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड से क्या होता है? टाइम चेंज होता है। ओके, नाउ कम टू द लोकल टाइम। अगर हम लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग अगर हम टाइम देखते हैं तो हर एक स्टेट का अलग अलग अपना अपना टाइम हो जाएगा। द टाइम इंडिकेट अबोव हैज़ बीन फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। द टाइम सो गिवन 5:28 AM एट क्वेता is 6 AM at Amritsar and 6:40 AM at Ranchi is the local time of these place. तो ये यहाँ का क्या है? लोकल टाइम है वहाँ का। एंड all places on the same given meridian of longitude will have the same local time. और जो इस वर्टिकल लॉन्गिट्यूड क्या होता है? वर्टिकल, जो भी लॉन्गिट्यूड पर जितनी भी स्टेट होंगी, जो भी लोकेशन होगी, वहाँ पर क्या होगा? सेम टाइम होगा। लेकिन लोकल टाइम कैन बी कैलकुलेटेड easily. We know that longitude of a place is measured from Greenwich in London. If it is 12 o'clock noon at Greenwich, at the time the sun is
the sun is overhead, it will be 268 minutes 67 degree east longitude into 4 minutes ahead at Quetta, or for 4 hours 28 minutes ahead, or at the time at Quetta in Pakistan will be 4:28 pm 12 noon plus 4 hour 28 मिनट। और अगर हमें प्राइम मेरिडियन का टाइम पता है, अगर वहाँ पर 12 बजे हैं, तो अगर हम 67 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ मूव करेंगे तो 4 से इंटू हो जाएगा और वहाँ पर क्या टाइम आ जाएगा, 4:28। इसी तरीके से अगर क्वेता की तरफ हम मूव करेंगे तो 12 नून प्लस 4 hour 28 मिनट आ जाएगा। Similarly, time at Amritsar will be 5 hour ahead or 5 pm, and at Ranchi it will be 5:40 pm. This is the local time at each place. तो हर एक जगह का लोकल टाइम क्या होता है, डिफरेंट होता है according to the location of longitude. Thus, the local time of a place can be defined as the time fixed with respect to the position of the overhead sun. कि ग्रीनविच लंदन जहाँ 12 बजे होते हैं उसके अकॉर्डिंग बाकी सारी जगह का टाइम डिसाइड होता है। तो लोकल टाइम को हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, लोकल टाइम इज डिस्क्राइब्ड एज द टाइम फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द ओवरहेड सन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स। अगर हम हर एक स्टेट का लोकल टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जो ट्रेन रूट है, रेलवे रूट है, उनका टाइम बिल्कुल फिक्स होता है, लेकिन अगर हम स्टेट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। टू अवॉइड दिस confusion, the central longitude has been fixed of each country for calculating standard time. इसी तरीके से ये अवॉइड करने के लिए, कंफ्यूजन ना हो टाइमिंग में, तो हर एक कंट्री का एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मार्क किया गया है और उसी के टाइम को स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री बना दिया गया है। द ग्लोब हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। ईच कंट्री हैज सिलेक्टेड वन और मोर स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर अ certain geographic area. Countries which have vast east-west extent like Russia, Canada and USA have between 1 to 11 time zones. Each zones covered about 15 degree longitude. Russia longitudinal extent is 170 degree, thus it has as many as 11 time zones. The United States of 4 time zones and Canada has 5 zones. Within each time zone, a standard meridian is fixed फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड टाइम। तो हर एक कंट्री में अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट को 4 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, कनाडा को 5 जोन्स में, लेकिन इन जोन्स के भी कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हर एक कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम मार्क किया गया है। नाउ व्हाट इज IST? Greenwich Mean Time, that is GMT, and IST is Indian Standard Time. Indian Standard Time क्या है? GMT is the time जो कि Greenwich situated on 0 degree longitude near London, और Indian Standard Time show the geographic location of India at 82 degree 30 minute east. To avoid the confusion of having different time zones, it has been selected as a standard for the whole country. तो 82 degree 30 minute इस टाइम को, यहाँ इस लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम होगा उस टाइम को क्या कंसीडर कर दिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ताकि कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को जो टाइम होता है वहाँ पर वो IST बना दिया है। नाउ डे लाइट सेविंग टाइम। मैनी कंट्रीज with wide latitudinal extent like the United States, North, South America and Australia experience vast difference in time between eastern and western parts because of sunrise in the east. This presents some difficulty in switching on electrical lights of automobiles, domestic and industrial lighting system even during the daytime, particularly during summer. To save energy, daylight saving time DST has been adopted. Based on DST, Brazil in South America and many states of USA on the eastern coast follow EST, that is Eastern Standard Time, is written as Eastern Time, which is usually 5 hours behind GMT, जो Greenwich Meridian Time से
5 घंटे पीछे टाइम चलता है। वहाँ पर क्या होता है, डे टाइम में बहुत ज़्यादा रोशनी होती है कि हम लाइट का यूज़ ही नहीं कर सकते। तो लाइट एनर्जी को सेव करने के लिए जो डे टाइम है उसको क्या कर दिया गया है, वर्किंग आवर्स उसको बना दिए गए हैं, ताकि एक तो एनर्जी सेव हो सके, दूसरा हम उस एनर्जी को एक यूज़फुल वे में यूज़ कर सकें। As the standard meridian for the purpose of calculation of standard time, the 82°30 East meridian passes through Allahabad, which is the central place, that is Indian Standard Time. Indian Standard Time that is 82 and 30 डिग्री कहाँ से पास आउट होता है, ये इलाहाबाद से, जिसको क्या बनाया गया है, क्या फिक्स किया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. East Standard Meridian time is fixed with reference to Greenwich Meridian. It is known as Greenwich Meridian time. The standard time of India is 5 hour 30 minute ahead of GMT. GMT से ग्रीनविच यानी लंदन से हम 5 घंटे 30 मिनट इंडिया का जो टाइम है वो आगे चलता है. It is so because India lies to the east of Greenwich Meridian. क्यों? क्योंकि इंडिया ग्रीनविच मेरिडियन से किस तरफ लाई करती है, ईस्ट की तरफ, इसीलिए हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं. और जो ग्रीनविच लंदन से वेस्ट की तरफ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ 5.5 घंटे या जो टाइम है ग्रीनविच पे उससे पीछे चलते हैं. ओके, नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. अ ग्लोब इज अ 3-dimensional स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो है वो 3D मॉडल है अर्थ का. इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट अमंग ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. जितने भी इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, टोटल 181 पैरेलल्स हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल और लॉन्गेस्ट पैरेलल कौन सा है, इक्वेटर. द शेप ऑफ द अर्थ इज नियरली स्फेरिकल. अर्थ की शेप कैसी है, स्फेरिकल. द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. जो इक्वेटर है लॉन्गेस्ट पैरेलल, वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड मेरिडियन विच मीन्स मिड डे. लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, मेरिडियन भी कहते हैं, जिसका मतलब है मिड डे. द लॉन्गिट्यूड लाइन 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट कवरिंग इनटू वन लाइन ऑपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री इज द 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड. प्राइम मेरिडियन एक कॉमन मेरिडियन है 0 डिग्री एंड उससे 180 डिग्री वेस्ट है, 0 to 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं और 0 to 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हैं. अ ग्रिड इज द easiest means of representing distribution of time over the globe. एक ग्रिड जो है वो easiest means of representing distribution of time है एक ग्लोब पर. अगर हमें ग्रिड पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता है तो हम इजीली उस प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, वहाँ का टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.